Hello students, I hope you are all are fine and doing well in your studies. We have already started with chapter number 3, that is fiber to fabric, right? And what we have discussed? We have discussed a few topics like animal fiber we have discussed, wherein we have discussed about wool. हमने wool के बारे में last time पढ़ा था कि from where on what are the different varieties of sheep, right? Goat, camel or other animals from where we obtain wool. Now we have discussed about the one topic that also shearing of wool, right? Shearing मतलब क्या? Removing the dead, removing the hairs along with a thin layer of dead skin from the sheep or various animals, right? From where we get hairs, or we can say fleece of an animal, right? So that is what we have discussed in the previous class, that is shearing. Shearing क्या होता है? Shearing is removing the hairs of the animal or from the sheep along with a thin layer of dead skin, right? जो ऊपर की जो उनकी they have very thick skin, तो thick skin में से ऊपर से thin skin अगर if we remove, it won't hurt them much, right? So removing hairs along with the dead layer of skin is called shearing, right? So what you can say, removing hairs along with thin dead layer of skin is called shearing, right? After that, what it is done? Okay, so firstly shearing is generally done after winter, मतलब in summer it is done. Why it is done in summer? Because summer already it is quite warm, very hot climate होता है, so animals generally feel hot, right? they उनको गर्मी भी लगेगी, so उस टाइम पे रिमूव करेंगे हेयर तो they won't be feeling that much cold, right? क्योंकि कंडीशन सी क्लाइमेट सी क्या है, क्लाइमेट ही हॉट है, तो राइट सो करेंगे. एंड देन एज हमको भी पता है व्हेन वी गेट आवर हेयर कट्स, राइट, बियर कट करते हैं, सो इट ग्रोज अगेन. तो सिमिलरली क्या हो जाता है, इनका जब हेयर्स व्हेन दे आर रिमूव्ड, व्हाट द हेयर्स दैट वी आर रिमूविंग, ओके, आफ्टर दैट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी ग्रोन अगेन, राइट? तो वापस आ जाएगी. सो समर के बाद जब नेक्स्ट ईयर विंटर आएगा, सो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन में जब नेक्स्ट सीजन में जब विंटर आएगा, सो क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम द हेयर्स दे विल ऑलरेडी विल ग्रोन अप, राइट? सो समर में किया जाता है, दैट इज हाउ दे गेट दे रिमूव. ये प्लानिंग होती है, राइट? अ फार्मर और द शेपर्ड हु इज रियरिंग द शीप, उनका एक तरीके की सोच होती है कि भाई सिर्फ ओनली नॉट फॉर ह्यूमंस बेनिफिट हम एनिमल्स को यूज ना करें, एनिमल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? So that is why they used to do it in summer, right? So once the shearing is done, shearing हमको पता है कैसे करते हैं. shearing is removing the hair, right? तो hair या fleece remove करना है, जैसे हम trimmer use करते हैं, right? hair barbers जो होते हैं वो क्या करते हैं, hair remove करने trimmers use करते हैं. Similarly they also use machines in order to remove or in order to do shearing. Now when the shearing is done, okay, what is the next step that is done? So they have got the fibers. Now what they will do, they will do washing of this fiber. What they will do, washing of this fiber, because क्या होती है, फाइबर थोड़ी एकदम नीट एंड क्लीन होगी, राइट? सो दे विल डू वॉशिंग ऑफ द फाइबर एंड दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग. व्हाट इज स्कोरिंग? स्कोरिंग इज व्हाट, वॉशिंग द फाइबर्स, राइट, दैट आर ऑब्टेन्ड. जो भी हमने शेयरिंग के वक्त जो फ्लीस और हेयर जो ऑब्टेन किया है, राइट, दैट आर वॉश्ड. ओके, सो व्हाई वी नीड टू व्हाट, वॉशिंग means what, scoring. Why it is required? Because, or we can say to remove dirt, right? In order to remove dirt, dust and grease, right?
एनिमल है तो एनिमल्स क्या, जब भी उसको कितना भी आप संभाल के रखोगे, राइट, ऑन द दैट ऑन देयर हेयर्स व्हाट, ये सब चीज़ होगी, राइट, ग्रीस होगा, कहीं ना कहीं से लगेगा, डस्ट एंड डर्ट विल ऑल्सो बी गेट, फाइबर्स के बीच में आ ही जाएगा, राइट. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दोज थिंग्स हमको नीट एंड क्लीन चाहिए, सो वी नीड टू डू अ वॉशिंग, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग. आफ्टर स्कोरिंग व्हाट वी नीड टू डू, ओके. सो स्कोरिंग जनरली इट इज डन इन मशीन्स, राइट, मशीन्स में किया जाता है वॉशिंग एंड एवरीथिंग, जैसे हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश होते हैं. सिमिलरली देयर hairs are also washed in the machines only. After this what we need to do, we need to sort out them. What we do them, sort out them. Why we need to sort out means what, हमने जो फाइबर्स वी हैव ऑब्टेन, अब एक एनिमल की फाइबर लेके मैं उसको वॉश करने नहीं जाऊंगा. आई विल कलेक्ट इट फ्रॉम नंबर ऑफ एनिमल्स, राइट, नंबर ऑफ शीप्स में से या गोट्स में से मैं आई विल टेक अ फाइबर एंड देन आई वॉशिंग करूँगा. सो आई विल बी हैविंग आफ्टर वॉशिंग, राइट, दैट इज स्कोरिंग के बाद क्या होगा मेरे पास, आई विल बी हैविंग नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाइबर्स, राइट, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाइबर होगी, अलग अलग टेक्सचर की होगी, अलग अलग कलर की होगी, राइट, अलग अलग क्वालिटी की होगी. सो आई नीड टू सेपरेट देम, ओके, जिसको बोलते हैं सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, डिफरेंट फाइबर्स वी आर सेपरेटिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर में मीन्स क्वालिटी और उसके फॉर्म में, राइट, क्वालिटी कलर वो सब के हिसाब से व्हाट वी विल separate or segregate the different fibers that we obtain, right. So that is called what, sorting, okay, that is we can say segregating or separating, right, separating different texture of फाइबर्स, राइट, डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ फाइबर हम सेपरेट करेंगे, जिसको बोलेंगे सॉर्टिंग. आफ्टर सॉर्टिंग व्हाट वी हैव टू डू, ओके, अगेन क्या करते हैं ये लोग, वापस दे डू दिस प्रोसेस, स्कोरिंग करेंगे, राइट, बिकॉज हो सकता है कि सेग्रीगेट के बाद भी अगर इफ एनी ऑफ द डर्ट एंड दिस आर स्टिल लेफ्ट दे कैन रिमूव, ओके. सो ये करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा अनलेस एंड अनटिल दे ऑब्टेन अ वेरी गुड and neat and clean fiber और proper segregation of fiber is done, right. So इस वक्त पे क्या होगा, along with that there are small fibers are also there, जिसको बोलते हैं boors, right, there are small fibers, okay, that is called boors, okay. boors are there where you see कि काफ़ी बार होता है ना ठंडी में, हम जब when we wear woolen clothes, तो woolen clothes पे सब छोटे स्मॉल फाइबर्स दे गेट उसके ऊपर स्टिक हो जाती है, राइट. सो दैट स्मॉल फाइबर्स जो होती है दैट इज ऑफ नो यूज, राइट, जनरली, बट वो निकलती रहती है थोड़े टाइम में. सो दैट इज कॉल्ड बूर्स को क्या होता है, दे आर स्मॉल फाइबर्स, राइट, स्मॉल फ्लफी, वी कैन से स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, दोज आर कॉल्ड बूर्स, राइट, okay. So once sorting is done, then after what we have to do, those are taken, these fibers that of different texture are taken, और उसको हम क्या करेंगे, कलर देंगे. क्यों कलर देने की जरूरत है, बिकॉज जरूरी थोड़ी ना हम जो कलर नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन, ओके, वी विल वेयर ओनली दोज कलर क्लोथ्स. हम तो क्या करते हैं, वी वेयर डिफरेंट कलर क्लोथ्स. सो क्या करते हैं, उनको डाई करते हैं. क्या करते हैं उनको, उनको क्या करते हैं, डाई मतलब कलर देना, राइट. So they are the next step, that is what we are giving, we are coloring them. So क्या करेंगे, coloring of fiber, right, that is called dyeing, right, dyeing करेंगे where we give different colors to the fiber, right. Generally natural fibers that we obtain, it is generally obtained in the form of white color या in the form of brown or black color, right.
जनरली जो हमको एनिमल्स में से हम फाइबर्स कलेक्ट करते हैं एज अ वूल, राइट, वूल फाइबर दैट वी कलेक्ट, सो इट इज़ ऑफ व्हाट, वाइट और जनरली ब्राउनिश कलर. सो हम वो उसके जरूरी से वो कपड़े पहनेंगे. सो वी नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू कलर दोज फाइबर्स, राइट. And then after what, they are rolled into long threads, that is called yarn. and rolling के बाद क्या करते हैं वो लोग फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट into fabric, right. So this is how we obtain woolen clothes, right. woolen fabric किस तरह से, how we obtain, that is processing कैसे किया जाता है wool का, that is what we have seen in this class, right. I hope you have understood the each and every topic that every things that we have discussed in this chapter. In the next class we will be discussing about the silk, okay, that what, from where do we get silk, that is we already discussed that we obtain it from silkworm, right. but again उसमें किस तरह से process पूरा किया जाता है, that is what we are going to discuss in the next class, right. So thank you all.